Hello students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we'll study about the physical properties of the haloalkanes. Okay, so these are the physical properties of haloalkanes. So previous videos में हमने haloalkanes के जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन और हमने उसके स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ CX बॉन्ड हमने किया है. सो उसके कंटिन्यूशन में इस वीडियो में हम देखते हैं लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएल्केन्स. सो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले डिस्कस करते हैं उसकी फिजिकल स्टेट. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ हेलोएल्केन्स, तो लोअर मेंबर्स ऑफ हेलोएल्केन्स लाइक CH3F हो गया, CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl, so C2H5 F, all these are gases at the room temperature. ठीक है, lower members जो हैं we can say they are the gases at room temperature. Then members up to 18 carbon atoms they are liquids, while higher members they are solid at room temperature. ठीक है, so जैसे जैसे उसका अल्काइल का एल्केन्स का और you can say the जो आर है, आर एक्स है जो जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं. सो जैसे जैसे आर का साइज़ जो है वो अल्काइल ग्रुप का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे वैसे उसकी फिजिकल नेचर जो है वो चेंज हो रही है. देन फर्दर एल्काइल हैलाइड्स दे आर कलरलेस generally when pure, but bromides and iodides they develop color when they are exposed to light. So this is something about their physical state of the haloalkanes or alkyl halides. Many volatile halogen compounds they have sweet smell like CH3. ठीक है, CH3 जो है like you can say chloroform, they also have the sweet smell. So volatile halogen compounds जो हैं they show the sweet smell also. So this is all about the physical state. मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ. like lower members जो हैं they are gaseous in nature, higher members up to 18 carbons they are liquids, while still higher members they are solid in nature. Then alkyl halides generally they are colorless when pure, but you can say bromides and iodides they develop color in the presence of light. Then many volatile halogen compounds they have sweet smell. like halogen compound की हम बात करें sweet smell होती है जिसकी that is chloroform. The next physical property we'll talk about that is boiling point. So this is very very important. So many questions are asked, reasoning questions they are asked related to the boiling points. Like higher boiling point, these haloalkanes they have higher boiling point than their parent alkane. What does it mean? Suppose we have this ethane. अगर हमारे पास एक इथेन है और एक हमारे पास है हेलो इथेन, तो बिकॉज हमने एक सपोज हाइड्रोजन रिप्लेस करके किससे किया, हेलोजन से रिप्लेस किया. सो दिस बिकम इट्स पेरेंट हाइड्रोकार्बन कि जहाँ से वो ड्राइव हुआ है. यू गेटिंग माई पॉइंट कि जहाँ से वो ड्राइव हुआ है बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन. सो दिस हेलोअल्केन्स दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू देयर parent hydrocarbon. So what is the reason behind? We can say, see, these are the non polar these hydrocarbons जो है प्योर हाइड्रोकार्बन्स जिनसे हम हेलोअल्केन्स को ड्राइव कर रहे हैं, they are non polar in nature. But in the previous video we have studied like CX bond that is polar in nature. So उनमें X पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. तो इस पोलैरिटी की वजह से जिसमें डाइपोल मूवमेंट आता है. सो लाइक दिस इज़ वन ऑफ द मॉलिक्यूल. सो दूसरा मॉलिक्यूल होगा. सो दिस पॉजिटिव नेगेटिव, ड्यू टू दिस पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस they show the dipole interactions, so which are stronger as compared to the van der Waals forces of interactions which are present in the hydrocarbon. So you can say what is the reason, or if the question is there ki why do they have haloalkanes they have higher boiling point as compared to the parent hydrocarbons, then the reason is that they are having, because of this polar CX bond, they have dipole moment. ठीक है, and due to dipole attractive interactions between the molecules of haloalkanes they have हायर बॉइलिंग पॉइंट. और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी. सपोज अगर मैं
रफली आपको बताऊं, दिस इज, मान लीजिए यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है। सो जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, सो उनके बीच में जो इंटरेक्शंस होंगी, अगर हम उन इंटरेक्शंस को ब्रेक करेंगे और इन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करेंगे, देन ओनली दीज मॉलिक्यूल्स दे विल बी फ्री फ्रॉम दीज फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। सो सेम वे दूसरा मॉलिक्यूल होगा तो उनके बीच में ये फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन होंगी। सो दिस लाइक दिस, ये एक मॉलिक्यूल है हेलो एल्केन का, ये दूसरा है, ये तीसरा, सो ऑन। सो हमें इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस को ब्रेक करना है। सो जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मेन फोकस जो रहता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर प्रेजेंट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल। सो जितने ज़्यादा एनर्जी हमें इन फोर्सेस को ब्रेक करने में लगेगी, उतना ही बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होगा। तो सेम वे इसमें हेलो एल्केन्स में जो है दीज आर द डायपोल फोर्सेस ऑफ डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस आर प्रेजेंट। ठीक है, ये डायपोल इंटरेक्शंस जो इनमें प्रेजेंट है दे आर स्ट्रोंगर एज कम्पेयर टू द वैन वाल फोर्सेस। तो इनको फ्री करने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, सो बॉइलिंग का क्या मतलब है कि हर मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से फ्री होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग। सो दैट इज वाई दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू देयर पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स। देन नेक्स्ट है, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर देखते हैं, लाइक द ऑर्डर ऑफ हेलो एल्केन्स बॉइलिंग पॉइंट्स इन केस ऑफ हेलो एल्केन्स दैट वेरीज। जो RI है, ठीक है, सो they are having higher boiling point as compared to RBr, then RCl, or then CF. So like due to increased size of this iodine, as we move down the group, like यहाँ पर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो जैसे जैसे एज वी मूव डाउन द ग्रुप तो साइज जो है वो दैट इंक्रीजेस। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है देन मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अब सी इसमें हम देखो कंपेयर कर रहे हैं हेलो एल्केन्स, इसमें R दैट इज सेम बट वेयर द डिफरेंस लाइज इन केस ऑफ द हेलोजन्स। ठीक है, हेलोजन्स में साइज जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होता है। तो जैसे इसका साइज इंक्रीज होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस दैट विल आल्सो इंक्रीज एंड दे विल इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। सो दिस वाज वन कंपैरिजन, वन ऑल दीज आर क्वेश्चंस। यहाँ से भी आपका रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है, इस पॉइंट से भी आपका रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है। सो अगर R का साइज सेम है और हेलोजन का डिफ़र कर रहा है, ठीक है, तो हमें हेलोजन्स को कंपेयर करना, बिकॉज R साइज जो है वो सेम है, सो वो डिफ़र कर रहे हैं इन केस ऑफ देयर साइजेस। ठीक है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट्स, देन नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो, दिस आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स। ठीक है, सो अगर हम देखें कि आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स में द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको जो इस चैप्टर की सबसे फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन्स के बारे में बताया था। फिर भी यहाँ मैं आपको रफली एक बार स्ट्रक्चर लिख देती हूँ। सो अगर हम ये देखें कि दिस इज़ प्राइमरी हेलो एल्केन, यानी कि ये कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच है दैट इज़ अटैच फर्दर विथ वन कार्बन। ठीक है, सो ये हो गया प्राइमरी। अगर हम यहाँ पर 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 ब्यूटेन की, ये हो गया आपका नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, और यू कैन से स्ट्रेट चेन हो गया, तो ये दिस इज़ प्राइमरी। अब इसमें जो है वो सेकेंडरी इसका बनाएंगे, तो ये कार्बन जो है वो फर्दर जो है वो 2 कार्बन के साथ अटैच होगा। ठीक है, सी। और अगर हम इसका थर्ड बनाएंगे टर्शरी, तो दिस कार्बन इज अटैच्ड विथ 3 कार्बन्स। ठीक है, अब प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट जो है, अगर आइसोमेरिक एल्कोहल्स की बात कर, सॉरी नॉट एल्कोहल्स, हेलो एल्केन्स की बात करें, तो ये हमारे पास C4 जो 1 2 3 4 4 कार्बन्स हैं। ठीक है, अब 1 2 3 4 इसमें भी 4 कार्बन्स है, इसमें भी 4 कार्बन्स है, बट यू सी दे आर
आइसोमर्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। तो ये दिस इज़ प्राइमरी एंड दिस इज़ सेकेंडरी एंड दिस इज़ टर्शरी। तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्राइमरी का ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। टर्शरी का सबसे कम रहता है। अगर हम देखें कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग इन द अल्काइल ग्रुप। सो व्हाट डज इट मीन कि जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होता है। क्योंकि अब आप देखोगे अगर इसका सरफेस एरिया देखो, सो इट नियर अबाउट दैट अटेन्स द स्फेरिकल शेप as compared to this and as compared to this straight chain. So जितनी straight chain है उसका surface area ज़्यादा है, surface area ज़्यादा है तो van der Waals forces of attraction भी ज़्यादा है, ठीक है। So more is the surface area, more is the extent of van der Waals forces of attraction, lesser is the surface area, lesser will be the van der Waals forces of attraction. So this matters in the boiling points, ठीक है। सो यहाँ मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन भी कर दिया है, आप इसको नोट भी कर सकते हो। सो दिस इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट इंक्रीज इन ब्रांचिंग द मोलिक्यूल अटेन्स स्फेरिकल शेप, जो कि मैंने आपको यहाँ पर ये देखो जैसे ये हो गया टर्शरी, तो इट ऑलमोस्ट दैट अटेन्स द स्फेरिकल शेप, जिसका जो स्फेरिकल शेप है that has the less surface area as compared to the straight chain, ठीक है। So as a result interparticle forces become weaker and resulting in the lower boiling point, ठीक। So यहाँ example भी है, tertiary butyl chloride has low boiling point as compared to that of the straight chain। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर छोटा सा ये स्ट्रक्चर बनाकर आपको समझा दी है कि दिस इज़ द टर्शरी ब्यूटाइल, तो इट इज़ ऑलवेज हैविंग द लेसर बॉइलिंग पॉइंट। सो जब भी आपको कंपैरिजन करना हो विद इन द आइसोमेरिक फॉर्म्स, ठीक है, सो यू इफ़ द नंबर ऑफ कार्बन्स दे आर सेम एंड दे आर हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो उसको उसकी जितना ज़्यादा, ये तो एक एग्जांपल थी। अगर आपको और भी कुछ कंपैरिजन के लिए मान लीजिए क्वेश्चन में आता है तो यू सी मोर इज़ द ब्रांचिंग, लेसर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है फॉर द सेम हैलोजन, अगर हैलोजन एटम सेम है देन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास और यू कैन से द साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप। वेन एवर एनी क्वेश्चन इज देयर, ठीक है, तो आप उसको पहले जिसमें भी हमें कंपैरिजन करना है या हमें ऑर्डर बताना है तो फर्स्ट यू जस्ट सी द वेयर डिफरेंस लाइज। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, अल्काइल चेन में, ठीक है। हैलोजन जो है वो सेम है, तो अगर हैलोजन सेम है तो हम उसको कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है, हम जहाँ पर डिफरेंस होगा हम वही चीज़ कंपेयर करेंगे। अभी ऊपर देखिए आपने क्या किया, आप इसमें वन नंबर ऑफ कार्बन सेम थे लेकिन हमने उसकी पोजीशंस उसके स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया। तो ऐसे ही सी जब आपका हेलोजन सेम है बट अल्काइल ग्रुप का साइज जो है वो डिफर हो रहा है, देन ऑलवेज वी कैन से halogen is same, if halogen is same then more is the size of the alkyl group, मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है अल्काइल ग्रुप का, उसका सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा सो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस भी इंक्रीज होगा, उनका मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होगा। सो मोर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। सो स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट्स, हम उसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस को देख रहे हैं कि कैसे कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। Now next, the very important physical property of the haloalkanes, that is solubility, ठीक है। सोल्यूबिलिटी, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि CX की नेचर जो है दैट इज़ पोलर इन नेचर, ठीक है, कि उसके पास Cl के पास या हेलोजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के पास जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इस बॉन्ड की जो नेचर है दैट इज़ पोलर इन नेचर, but still alkyl halides are insoluble in water, as we know that like dissolves like, so polar substances जो है they are soluble in the polar solvents, non-polar they are soluble in the non-polar solvents, so that's why we used to say like dissolves like. But here the question arises like if haloalkanes they are polar in nature still they are insoluble in water, ठीक है।
So what is the reason behind, let's see कि what is the reason behind why they are insoluble in water. See, in water we know that hydrogen bonding is present. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, ठीक है, बिकॉज वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट एंड दे आर हैविंग द हाइड्रोजन बॉन्ड with you can say in between the water molecules. Now but still this haloalkanes, they are not able to form the hydrogen bond with water, and the magnitude of attractive forces in Rx and H2O system that remains less than the attractive force in water molecules which are hydrogen bonds. अब solubility में अगर हम solubility की बात करें तो ये है कि लाइक इन केस ऑफ वाटर, मैं आपको एक बार इसका थोड़ा सा बता देती हूँ कि लाइक देखिए, जैसे हम बात करते हैं वाटर की तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। सो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। सो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होगा, सो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल हाइड्रोजन है, पार्शियल पॉजिटिव इन केस ऑफ हाइड्रोजन। फाइन। सो इसमें क्या होगा, देखो दिस इज forces of attraction in between the water molecules. So this is hydrogen bonding, ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिकॉज इन केस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस वन ऑफ द एटम इन्वॉल्व दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है। सो ऐसे ही सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, एक और बना के बता देती हूँ सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो ऐसे ही सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, अब जब हम इसमें एंड देयर इज ए हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, और हमने उसमें अभी जो स्टडी किया है लाइक कि ये दिस बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव है, नो डाउट, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। सेम वे इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में डाइपोल इंटरेक्शन से, दिस इज डाइपोल इंटरेक्शन। सो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में डाइपोल इंटरेक्शन से आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो व्हेन वी यूज टू डिजोल्व दीज हेलोअल्केन्स इन वाटर सिस्टम, सो वाटर सिस्टम में जो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड है, अब कोई भी चीज़ हम किसी में डिजोल्व करते हैं तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं उसकी आपस में टूटती हैं और वो इसके साथ बनाता है। अब सपोज़ मैं इसको ए मानती हूँ पूरे वाटर को और इसको बी मानती हूँ, और इसको मैं ऐसे शो कर रही हूँ कि जो ए फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस हैं, और यहाँ पर अगर बी की बात करें तो बी फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें डाइपोल इंटरेक्शंस है, और जब दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास आएंगी ए बी। सो जब कोई भी चीज़ किसी में सॉल्युबल होती है तो दोनों की अब आपस में इंटरेक्शंस होंगी, ठीक है। अब जैसे ये वाटर हो गया और ये हेलोअल्केन्स हो गया, अब इनका जो भी, दिस इज़ नॉट अ पर्टिकुलर केमिकल बॉन्ड, दीज आर द जस्ट द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस। तो जब भी हम इसको डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, सो ए बी इंटरेक्शंस जो बनेंगी, सो दे विल बी वीकर एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, सो वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन द वाटर, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली द रीज़न। सो ये मैंने, अदरवाइज आप सिंपली लिखेंगे तो आप हम लैंग्वेज में लिख देंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, बट दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि जो भी हमने लिखा है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगेन अपने पॉइंट पे आते हैं। सो ऑल्दो they are polar in nature,
they are insoluble in water because they are not able to form hydrogen bond with water. And the magnitude of attractive forces in RX and water system remains less, जो कि अभी मैंने आपको समझाया. The attractive force of water molecules which are hydrogen bond, so they and these haloalkanes they are soluble in organic solvents. अगर ये polar solvent में water में soluble नहीं है तो फिर किस में soluble है, तो ये organic solvents में soluble है. ठीक है. Then next है density. So if we talk about the densities of haloalkanes, so RF, RCl they are lighter than water, and RBr and RI they are heavier than water. So densities का order जो है वो यही रहेगा, RI, RBr because their sizes and their masses they increase as we move down the group. ठीक है, RCl and RF. Then polychlorides they are heavier than water. Obviously more than one number of halogen atoms if are present, then they have higher densities as compared to water. Then generally in general densities of halogen derivatives increases with increase in the number and atomic mass of the halogen. अगर आपको मोनो हेलो एल्केन्स में कंपेयर करना है and the halogen atom is different, ठीक है, then size that matters. So as we move down the group, the size of halogen atoms and you can say mass of halogen atoms and size and mass they are increasing. ठीक है. So basically density की बात कर रहे हैं तो mass matters a lot. And when we are talking about the polyhaloalkanes, तो more is the number of halogen atoms, then more will be the density of that particular haloalkane. ठीक है. Then next physical property we will talk about, that is dipole moment of the हेलोएल्केन्स. ठीक है. अब डाइपोल मोमेंट जो है हेलोएल्केन्स की कंपेयर करें तो डाइपोल मोमेंट मीन्स वी नो दैट बॉन्ड इज पोलर इन नेचर. ठीक है. हाउ स्ट्रॉन्गली द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज pulling that shared pair of electron towards itself. ठीक है. More is the pull towards this halogen atom, more will be the magnitude of the negative charge and more will be the polarity and more will be the, जितना separation ज़्यादा होगा उतनी ही dipole moment जो है वो ज़्यादा होगी. ठीक है. सो अगर हम इस क्राइटेरिया पे काम कर रहे हैं, लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द एटम. सो मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर विल बी द डाइपोल मोमेंट. और इसकी अगर बात करें तो CF शुड हैव this bond, CF bond should have more dipole moment, should be more polar and should have more dipole moment as compared to other. But if we see the order is this, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो है वो हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. सो उसके हिसाब से देखें तो CF का ज़्यादा होना चाहिए, बट CF का जो है डाइपोल मोमेंट दैट इज़ लोअर एज कंपेयर टू CH3Cl. ठीक है. सो दिस कैन बी द क्वेश्चन. ठीक. सो इसका डाइपोल मोमेंट जो है CH3F का CH3Cl से कम है बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम. ठीक है. हियर आई हैव रिटन द रीज़न ऑल्सो और मैं अभी आपको समझा भी देती हूँ अच्छे से. सो ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, सो इट फॉर्म्स वेरी स्मॉल बॉन्ड्स and starts causing the repulsion and reduces the dipole moment of the molecule. अब देखिए अगर हम बात करें C और F बॉन्ड की. ठीक है. अब F का साइज जो है दैट इज़ वेरी स्मॉल. 7 electrons they are occupied in its outermost orbital and size outermost orbit and the size is very small. अगर small size में हम 7 electrons already it has, then it is attracting a shared pair of electrons towards itself. no doubt attraction से वो partial separation जो वो ज़्यादा होनी चाहिए, partial charge का magnitude जो है वो high होना चाहिए, but ये इसकी तरफ जितना ज़्यादा आएगा उतना ही magnitude जो है वो partial charge का ज़्यादा होगा और उतनी dipole moment ज़्यादा होगी. but due to its small size this shared pair of electrons that feels repulsion. So
वो उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको पुल तो कर रही है, बट उसका साइज स्मॉल होने की वजह से और दिस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस, नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस की वजह से जो है वो उतना पुल जो है वो फील नहीं करता, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दिस जो है अब उसको वो साइड पुल तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से है, बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस की वजह से वो उतना उसके जो है वो क्लोज नहीं आ पा रहा है, उतना उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शंस, ठीक है। सो उसकी वजह से जो उसका मैग्नीट्यूड है पार्शियल चार्ज का, पार्शियल नेगेटिव चार्ज का, वो कम रह जाता है CCl बॉन्ड से। तो बिकॉज ऑफ दिस द डाइपोल मोमेंट जो है वो CCl बॉन्ड का ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू CF बॉन्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दोबारा से एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ CF, more electronegativity of F atom, CF bond जो है that should be more polar in nature and that should have more dipole moment, ठीक है। पूरे CH3F का dipole moment जो वो ज़्यादा होना चाहिए, बट इसका कम होता है CCl से, ठीक है। CCl बॉन्ड से इसका कम होता है। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ दैट बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, because of small size of fluorine, ठीक है, though it is more electronegative in nature, but because of its small size the bond is smaller enough and it causes the repulsions, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ आपको समझाया कि पुल तो अपनी तरफ वो अट्रैक्ट तो कर रहा है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, बट वो उतना उसके क्लोज नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, ठीक है, विच रिड्यूसेस द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। सो द ऑर्डर जो है वो डाइपोल मोमेंट का वो आ जाता है हमारे पास दिस CH3Cl, then CH3F, CH3Br and CH3I. So that's all for this video.